जो लैब्स मैंने आप लोगों को दी थी, बिजनेस लॉजिक अब्यूज़ वाली और एक्सेस कंट्रोल वाली, तो वो सब लैब सारी इसी में फॉल कर रही थी। और जिसने कर लिया ये, तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इज़ अ वेरी गुड अटैक टू इम्प्लीमेंट इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और ये हमारे बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल होती हैं। तो आप लोग ना ये चीज़ ज़रूर यहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है अपने केस में, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। चलो ये मैं एंड में दिखाऊंगा आप लोगों को, एक साथ ही सारी दिखा दूंगा। तो बेसिकली मैं आपको दिखाना ही चाह रहा था कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जिस तरह रिपोर्ट्स ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिलेटेड हुई हुई है और किस तरह लोगों ने इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके एक्सप्लॉइट किया है। तो आज क्लास के एंड में ना जितने भी अटैक्स आज हम लोग करेंगे, फिर मैं कलेक्टिवली एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल शो ऑल ऑफ दोज अटैक्स that happened in past 5 years or 10 years में भी, ताकि उससे ना एक आप लोगों को आइडिया हो कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में किस तरीके से ये वनरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही होती है। एंड सरप्राइजिंगली इवन टुडे दे स्टिल एग्जिस्ट, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर समवन फाइंड्स इट। ठीक है, तो ना ओके सो if at some point in time my voice is not yeah, so sorry about that. If sometime, if at some point in time my voice is not audible or you guys cannot hear me, so do please tell me or message on WhatsApp so that I know. ऐसा ना हो बीच में गैप आ जाए. Hello Odian, how are you? Were you able to do the labs that I had given in the homework previously? Odian, can you hear me? No, your mic is mute. I cannot hear you. Right. So Hello, hello. yeah, now you're audible. You're good. Yeah, I already installed the Bob Suite. You were able to do. Um, I found it difficult installing the Bob Suite, but I still like got it right. But I was like mastering how to use the Bob Suite since then. Were you able to do the labs that I had given for homework? No, 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 no. I didn't do that. But I tried watching the YouTube this thing. But like Okay. Okay. there Okay. was a lot. There was a long. Hmm. Okay. So were you able? Are you now a bit comfortable with Burp Suite's environment? Do you know how to use it? Yeah. I can try better now. Okay. Okay. So, all right. Thanks for the update. What I would suggest now for all is to open their Burp Suite environment and log in their Portswigger accounts so that
you guys can follow what I am doing with me, because what the problem is, uh, when you guys will do these labs later on, you will face difficulty, मुश्किल होगी। क्योंकि ये ना अब लैब्स आसान नहीं है, पहले तो अटैक्स बहुत आसान थे, अब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो अगर साथ करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट हो जाएगी। सो यू विल फाइंड इट quite helpful if you guys will be doing these labs with me. So I would suggest all of you to open your laptops, log into your PortSugar account, and just follow my footsteps. Mhm. Okay. Bilal, Heather, please mute your mic. Thank you. Um, okay, so let's start with injection now. जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल किया था ना, तो इंजेक्शन हम लोग हर उस वल्नरेबिलिटी को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई चीज़ ऐसी डाल रहे हों एप्लीकेशन में जिससे एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज हो जाए। We call injection, for example, the word is quite self-explanatory. When we inject something within an application and the application malfunctions, that is called injection in a very short and concise way. So if I would explain SQL injection is any such vulnerability that would occur in the SQL database. अब SQL database क्या होता है? हर एप्लीकेशन में डेटा स्टोर हो रहा होता है, डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन एवरी एप्लीकेशन, राइट? तो अब उस डेटा को कॉल करने के लिए मेरे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ लॉजिक होती है जो मुझे चाहिए होती है। उस मेथड को कॉल करने के लिए, उस लॉजिक को कॉल करने के लिए आई नीड टू नो SQL. This is the language that we use to call, to collect the data from the database, to find the data, to locate it, to know if uh, if there is anything inside it. If we want to extract it from the database, we'll need to know SQL commands. अब ये बहुत बेसिक कमांड्स होती हैं, जिसमें जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो अब जैसे मेरे पास अगर एक टेबल है, एक डेटाबेस है जो होगा लेट सपोज डिफेंसिक के नाम से। इफ आई हैव अ डेटाबेस बाय द नेम ऑफ डिफेंसिक, it would contain all the names of the students in the student column, और सब्जेक्ट का नाम होगा, जैसे भाई हम लोग साइबर सिक्योरिटी, हम लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से और सब्जेक्ट्स भी होंगे और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज भी होंगी। तो let's suppose there are four columns in that database. All right, so I'll open my notepad as well. It would be easier to explain. Wait, I'll open this. So there is a database by the name of Defensic. So let's suppose the name of the first column is services. The second column is students. Third column is कोर्स। ठीक है, अब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि दिस कॉलम वुड कंटेन, you know what, just let's remove this column for now. सिर्फ दो ही कॉलम है, स्टूडेंट्स एंड कोर्स। सो लेट्स सपोज आई वुड से मुबशिर, तो ये वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की क्लास में। और our teacher
right? Similarly, Ahmed, offensive security. Offensive security. Just like this, we can write the names of all the students, all the courses that Defensic offers, and similarly all the names of the teachers that are teaching those courses, right? तो ये हमारे पास हो गया डिफेंसिक का टेबल एंड डेटाबेस प्रिपेयर्ड, ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया। अब अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनानी है, मिसाल के तौर पे डिफेंसिक की एप्लीकेशन बनानी है, मुझे वेबसाइट बनानी है जैसे इनकी है, और उस पर मुझे वो डाटा कॉल करना है, तो मैं बार बार हर स्टूडेंट का नाम नहीं लिखूंगा। मुझे अगर स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले करना है तो मैं क्या लिखूंगा? जो क्वेरी मेथड होता है वो इस तरह का कुछ होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिफेंसिक, इस तरह समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल नेम आ जाता है, स्टार का मतलब है ऑल। तो जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिफेंसिक करूंगा ना, तो आई विल बी एबल टू कॉल all the names of the students along with courses, along with teachers, everything it would display। अब अगर मुझे इसमें स्पेसिफिकली कुछ कॉल करना है तो मैं उसमें ये भी लिख सकता हूँ, सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंसिक। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ स्टूडेंट नेम्स आ जाएंगे, गेट इट। सिमिलरली अब इसमें काफ़ी ऑप्शंस भी होते हैं, अगर जैसे मुझे लिखना होगा सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंसिक वेयर कोर्स इज इक्वल टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी, तो मेरे पास सारे वो स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे जो डिफेंसिक में मौजूद हैं, और वो लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। जो दूसरे कोर्सेज पढ़ रहे होंगे वो नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ वेयर टीचर इज इक्वल टू नजम, तो मेरे पास सारे वो कोर्सेज आ जाएंगे, सारे वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो टीचर जो नजम से पढ़ रहे। गेट माई पॉइंट? सिमिलरली these all this all database, this is very critical part of the application। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर यही क्वेरी, ये इसको हम लोग क्वेरी कहते हैं, एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी ये जब डेवलपर करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, जब कोई वेबसाइट के लिए डेवलपमेंट कर रहा होता है और वो ये क्वेरी करता है, तो फिर तो बिल्कुल सही है, फिर तो बिल्कुल सही है, और बिल्कुल लाइक इट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी, राइट। मगर अगर यही क्वेरी एक अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? If a hacker is able to execute this query at the application, what are the consequences that would take place? कि एप्लीकेशन का जो डाटा होगा वो मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, और जो एप्लीकेशन का सेंसिटिव डाटा होगा, जो उसके अंदर मिसाल के तौर पे, चलो ये तो सिर्फ स्टूडेंट कोर्सेज और टीचर्स के नाम है, अब लेट्स सपोज देयर इज अ बैंक, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, HBL। व्हाट वुड हैपन? एक कॉलम होगा कस्टमर का, दूसरा कॉलम होगा बैंक अकाउंट नंबर का, तीसरा कॉलम होगा अमाउंट कॉलम, समझ रहे हो? तो कितनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि सिमिलरली अगर इफ वी टॉक अबाउट मिनिस्ट्रीज और डाटा ऑफ नादरा और KESC, लेट्स सपोज, तो उनके पास कितना क्रिटिकल डाटा होता है हर इनका। तो जब उनके हम लोग टेबल्स की बात कर रहे होंगे ना, तो दे वुड कंटेन एवरीथिंग रिगार्डिंग पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ पीपल। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि SQL डेटाबेस एक एप्लीकेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है और कितना डेंजरस होता है कि अगर कोई अटैकर इसमें घुस जाए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था SQL डेटाबेस का और SQL क्वेरी का। अब होता क्या है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में इफ़ यू आर अलाउड टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी, और जिससे आप लोग कुछ ऐसा एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी मौजूद हो जिसको यूज़ करके आप लोग एप्लीकेशन में
जाकर एप्लीकेशन में कोई ऐसे चेंजेस कर पा रहे हो या एप्लीकेशन में ये डाटा उठा पा रहे हो। अच्छा, ये डाटा बाय द वे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की क्वेरी होती है ना, सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंस वेयर कोर्स इक्वल टू डिफेंस सिक्योरिटी, इससे तो हम लोग उठा रहे हैं ना। सिमिलरली हम लोग डाटा चेंज करने की क्वेरी होती है, जिसको हम लोग डाटा चेंज भी कर सकते हैं। डाटा डिलीट करने की क्वेरी होती है। अब मैं सेलेक्ट को अगर सेलेक्ट की जगह डिलीट कर दूंगा ना, डिलीट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंसिव वेयर कोर्स इज इक्वल टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी, तो सारे स्टूडेंट्स के नाम ही चले जाएंगे। नाउ यू कैन इमेजिन कि इसका कितना डेंजरस इम्पैक्ट है इफ आई एम एबल टू डिलीट सम डाटा फ्रॉम नादरा। गेट माई पॉइंट? अगर मैं ये क्वेरी नादरा के डेटाबेस में एग्जीक्यूट कर दूं, जिसमें मैं डिलीट कर दूं या नाम चेंज कर दूं, अपने CNIC के अगेंस्ट में अपना नाम चेंज कर दूं, व्हाट वुड हैपन? I'll be allowed to make my I'll be allowed to change my own CNIC. My screen is blur. Why is my screen blur? Okay. Delete कर सकता हूँ from our application, from this जो भी वेब एप्लीकेशन पे मैं जिस पे मैं ये क्वेरी रन कर रहा हूँ। सिमिलरली मुझे सिर्फ इसको यहाँ पे डिलीट करना है, तो मैं पूरा स्टूडेंट्स का इसमें से कॉलम ही उड़ा दूंगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेस्टिंग ऑन नादराज एप्लीकेशन, I can execute a query to modify or even delete the data of a civilian, जिससे मैं उसमें उनके CNIC नंबर, या अगर मैं बैंक की बात करूँ, if I'm testing on HBL's application, I can modify or delete their data from from the application। तो मैं उनके क्लाइंट्स के नाम, मैं उनके अकाउंट नंबर्स, मैं उनको मॉडिफाई कर सकता हूँ, अकाउंट नंबर के अगेंस्ट अपना नाम लिख सकता हूँ। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी। तो कहीं पे भी SQL इंजेक्शन आती है ना, तो SQL इंजेक्शन इमीडिएटली क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी बन जाती है इसी इम्पैक्ट की वजह से। तो आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा, ये वाली एप्लीकेशन, अब हम लोग ये वाली वल्नरेबिलिटी सीखेंगे। तो आई होप एवरीवन इज लॉग्ड इन एंड we'll access this lab। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्क्रीन आ रही है, ठीक है। So this is the web application of SQL injection that the this Portugal labs have made, और ये इसको हम लोग यूज़ करके we can run we can extract the data from the web application। अच्छा, अब सिनेरियो क्या होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाया था ना, डिलीट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंसिव वेयर कोर्स इज इक्वल्स टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो अगर आप लोगों को इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स का आइडिया हो, पाइथन में हम लोग करते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ कोर्स is equal to offensive security, course is equal to print 1, तो इसका क्या मतलब है? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोर्स का नाम ऑफेंसिव सिक्योरिटी है तो 1 प्रिंट करें। ये मैं सिर्फ एक बेसिक आप लोगों को आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर ना एंड और का भी ऑप्शन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आगे लिख दूँ एंड, सॉरी नॉट एंड, और स्टूडेंट इज इक्वल टू मुबशर। तो अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऑफेंसिव की जगह डिफेंसिव कर दूँ, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग, तो if course is equals to defensive security और students is equal to मुबशर, print 1, तो ये क्या करेगा?
इवन दो कोर्स का नाम ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, डिफेंसिव नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट का नाम मुबशर है तो ये 1 प्रिंट कर देगा। तो इस क्वेरी का मतलब ये होता है और केस, ये और केस कहलाता है। यहाँ पे अगर जैसे मैं करूँ डिलीट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंसिव वेयर कोर्स इज इक्वल टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी और टीचर इज इक्वल टू नजम। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, सॉरी यहाँ पे डिफेंसिव कर देते, तो अब अगर मैं इस क्वेरी का मतलब क्या है कि मैं स्टूडेंट्स को डिलीट डिफेंसिव में से जहाँ पर कोर्स का नाम डिफेंसिव सिक्योरिटी है। तो अगर डिफेंसिव सिक्योरिटी नहीं है, जैसे इस केस में हमारे पास जो एंट्रीज हैं इसमें तो डिफेंसिव सिक्योरिटी नहीं है कोर्स का नाम, मगर और टीचर इज इक्वल टू नजम, लेकिन अगर टीचर का नाम नजम है तो भी डिलीट कर दो। तो और की कैटेगरी हम इस केस में एप्लीकेबल होती है। अब ये चीज़, ये पूरी जो मैंने आप लोगों को ये पूरी दिस एक्सप्लेनेशन दैट आई गिव, व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑल दिस, इसका पर्पस ये है कि जब हम लोग जाएंगे ना एप्लीकेशन में तो स्क्रीन हो गया अपडेट, ठीक है। जब हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन में तो इसमें जो एसक्यूएल इंजेक्शन है ना, अब वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है। पहले लैब का सवाल पढ़ रहे थे। दिस लैब कंटेन्स एन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। अच्छा, प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर किधर है? प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर ये, हाँ ये रहा। फिल्टर कैटेगरी इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, ठीक है। तो when the user selects a category the application carries out a SQL query like the following। तो ये इस तरह की ये क्वेरी रन कर रहा है। जब आप हम लोग क्लिक कर रहे हैं कैटेगरी पर, मिसाल के तौर पर जब मैंने कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की कैटेगरी पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा आ रहा है ना, फिल्टर कैटेगरी इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, जो बैक एंड पे एप्लीकेशन में जो क्वेरी चल रही है वो ये चल रही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गिफ्ट्स एंड रिलीज्ड इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों का आइडिया हो गया होगा, ये बड़ी सिंपल सी क्वेरी है कि सेलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में से, वेयर कैटेगरी, जहाँ से कैटेगरी गिफ्ट्स है, गिफ्ट्स का नाम है, इक्वल टू गिफ्ट्स, या यानी और रिलीज्ड इज इक्वल टू 1। ये इन्होंने कोई अपना पैरामीटर रखा हुआ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे अटैक से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग क्योंकि अभी इसने हमें सिंपल कहा है कि हम लोग इसको to solve the lab perform a SQL injection vulnerability that causes the application to display one or more unreleased products। अच्छा, तो सिनेरियो इज बेसिकली दिस कि इस पे इन्होंने हमें बता दिया है कि सारी एप्लीकेशन में जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन राइट, तो उसके ऊपर सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब ये कह रहे हैं कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करें, जिससे ये तो रिलीज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं, रिलीज इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट्स ये ई कॉमर्स वेबसाइट रिलीज कर चुकी है। जो प्रोडक्ट इस वेबसाइट ने रिलीज नहीं किया हमें वो दिखाना है। अगर हम लोग वो दिखा दें ना तो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी और ये लैब सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वेब स्यूट हम लोगों ने खोला हुआ है तो आप लोग भी सब वेब स्यूट खोल लें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, लेट मी ओपन दिस टैब साइड बाय साइड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कॉर्पोरेट अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इंटरसेप्ट करेंगे ऑन, ये सबको आइडिया हो गया होगा अब तक, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, ठीक है। तो जब हम लोग जाएंगे और ये देखेंगे क्वेरी, तो ये वाली क्वेरी है जो रन हो रही है, गेट फिल्टर कैटेगरी इज इक्वल टू कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, राइट।
और क्वेरी क्या रन हो रही है मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, आई होप सबको विजिबल भी होगी। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे राइट क्लिक और इसको हम लोग भेज देंगे रिपीटर में, सेंड टू रिपीटर, राइट, बिकॉज वी विल अटेम्प्ट मल्टीपल पेलोड्स। तो ये आ गई रिक्वेस्ट इस तरीके से हमारे पास, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब यहाँ पर जो क्वेरी रन हो रही है, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ। Right. So this is the query that is being run at the backend. ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पर जो है ना, सेलर फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गिफ्ट्स, तो यहाँ पर कैटेगरी में जो भी नाम लिखा आ रहा है ना, वो क्वेरी में इधर जाके इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं क्वेरी को यहाँ से क्वेरी में कुछ मॉडिफिकेशन कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूँ जिससे मैं बाकी क्वेरी को इग्नोर कर दूँ, उससे मैं इस एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट को मिसबिहेव करवा सकता हूँ बेसिकली। आई विल बी एबल टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ द वेब एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, व्हाट आई एम गोइंग टू डू सिंपली इज, मैं यहाँ पे इसके आगे जाऊँगा, मैं लिखूँगा और 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे यहाँ पे आई गेस ये लगाना होगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैं भी बताता हूँ इस पेलोड का मतलब क्या है। And URL encode कर URL internal server error. Why is it showing internal server error? ऐसे मतलब में where clause allowing retrieval of data not solved. Let's try to inject the payload in the lab. All 1 is equal to 1. Internal server error. Oh, okay, sorry. Again, we have to comment as well. Okay, my bad. Okay, sorry. So basically मैंने miss किया query that is being run, right, and released is equal to 1. Now what I did is मैंने इसके आगे सिर्फ एक payload डाल दिया। अब this is the attacker's payload, right? So मैंने simply करा क्या, मैंने ये डाला और 1 is equal to 1 और मैंने उसके एंड में शुरू में पहले ये डाला और फिर उसके बाद कमेंट आउट कर दिया। तो बेसिकली व्हाट आई डिड इज, यहाँ पर अब जब ये क्वेरी रन हुई है ना, तो ये वाला जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये सब एक अटैकर इंजेक्टेड पार्ट है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, जब उसने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गिफ्ट्स, कॉमा हम लोगों ने इसलिए डाला ताकि हम लोग उसको क्वेरी क्लोज कर दें, और 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कि या तो ये हो या 1 इज इक्वल टू 1, और 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसमें इसकी वजह से होगा क्या कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। और उसके आगे जो दो माइनस माइनस डालें, इसका मतलब है कि वी आर कमेंटिंग आउट द रेस्ट ऑफ द क्वेरी। तो उस वक्त जो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा था, आई डोंट नो इफ यू गाइस वर एबल टू सी इट और नॉट, उसका वो इंटरनल सर्वर एरर ही इस वजह से आया था क्योंकि हम लोगों ने आगे कमेंट आउट नहीं की थी रिमेनिंग क्वेरी। तो अब जब आगे मैंने माइनस माइनस डाल दिया ना, तो रिमेनिंग क्वेरी हैज़ बीन कमेंटेड आउट, और अब ये क्वेरी हम हमारे पास एक अटैकर ने उसमें इंजेक्ट कर दिया, और रिलीज्ड वाला पार्ट जो है, रिलीज इज इक्वल टू 1 वाला पार्ट, ये हट गया। नाउ वी वर एबल टू
फाइंड ऑल द डाटा जो गिफ्ट्स कैटेगरी में भी है और रिलीज नहीं भी हुआ है, तो वी वर एबल टू व्यू दोस इन द प्रोडक्ट कैटेगरी एज वेल। अब देख रहे हो इतने सारे आ गए, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें बहुत सारे हैं जो रिलीज नहीं हुए हैं मगर हमें अब शो हो रहे हैं। तो खैर तो आप लोग जब अभी अपने एंड से आप लोग अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी, कोई इतनी वो नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे भी गुल ने कहा ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, अब जहाँ तक गुल आपका सवाल है, देखो होता क्या है, इंजेक्शन पॉइंट्स ना, ये थोड़ा सा ब्लाइंड गेम होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको पता होंगी सारी क्वेरीज किधर हो रही हैं, या कौन से प्रोडक्ट में, ये कौन सी कैटेगरी में, या कौन से फिल्टर पे, कौन से पैरामीटर पे इंजेक्शन पॉसिबल होगी। यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड और लोकेट दीज पैरामीटर्स जस्ट एज इट इज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस किसी भी एप्लीकेशन पे जाओ और आपने किसी भी रैंडमली पॉइंट पर, आपको जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पर क्वेरी हो रही होगी, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करूँ, amazon.com, राइट, सही, अब ये वेबसाइट खुल गई और मैंने सारे प्रोडक्ट्स अब खोल लिए। अब मैंने गिफ्ट्स पे, अब मैंने यहाँ पे लगाया ना, गिफ्ट्स पे चेक लगाया, इस कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये इतनी बड़ी इन्होंने क्वेरी कर दी। सही है, अब गिफ्ट्स का नाम यहाँ लिखा आ रहा है, k इज इक्वल्स टू गिफ्ट्स, तो इसका मतलब है ये पॉइंट है जहाँ पर मैं पोटेंशियली इंजेक्शन चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना पेलोड अगर मुझे लिखना होगा ना, अगर जैसे अगर इनका भी सिमिलर होगा एक्सरसाइज, तो मुझे भी अपना पेलोड यहाँ डालना होगा, और 1 इज इक्वल टू 1। गेटिंग माई पॉइंट। ऑब्वियसली इस तरह रैंडम ये चलेगा नहीं, ये क्योंकि ये इसको रोकेगा आगे से, फायरवॉल भी लगी हुई है और सब कुछ है। जस्ट एक्सप्लेनिंग माई पॉइंट। तो आप लोगों को पैरामीटर ढूंढने के लिए ना, जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लगाना है, इसके लिए जरा थोड़ी सी एफर्ट ये है कि ब्लाइंड एफर्ट है, आपको थोड़ा सा रैंडम करना होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी मतलब आपको कोई बताएगा नहीं कि पैरामीटर यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबल है। यू विल हैव टू प्ले अ लिटिल ब्लाइंड गेम, थोड़ा सा थोड़ा सा चेक चेक करना होगा आपको, अटेम्प्ट ट्रायल एंड एरर करना होगा, फिर कहीं जाके आपको करेक्ट पैरामीटर मिलेगा। और एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा था, दिस इज अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। तो अगर ये किसी छोटे पैरामीटर में भी निकला है ना, जिसमें ज़्यादा डाटा ना भी हो, फिर भी यू विल लाइक गेट गुड बाउंटी आउट ऑफ इट। तो ये हो गया हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। अभी मैं अटैक्स की सिर्फ एक एक लैब करवा रहा हूँ, बाकी जो इजी डिफिकल्टी की एटलीस्ट लैब्स हैं वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग खुद कर लोगे अपने पास। ज़्यादा डिफिकल्टी हो तो ऑब्वियसली लैब्स के सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, लेकिन कोशिश करो कि अपने एंड पर पढ़कर आप लोग इस अटैक को अटेम्प्ट करो। सॉल्यूशन देख के करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको अटैक समझ में नहीं आया तो आप लोग रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ये अटैक नहीं कर पाओगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप ऑफ इंजेक्शन होती है कमांड इंजेक्शन। अब जैसे आप लोगों ने लिनक्स यूज़ किया होगा, विंडोज़ यूज़ हम लोग करते हैं, सब यूज़ करते हैं, कि कोई मैक ओएस यूज़ करता होगा, मैक ओएस एंड लिनक्स आर सिमिलर एनवायरनमेंट्स। तो व्हाट इज़ कमांड इंजेक्शन? कमांड इंजेक्शन ये होती है, कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जब मैं किसी सर्वर पर, क्योंकि आप लोगों को आइडिया होगा कि सर्वर पर जब कोई एप्लीकेशन चल रही होती है, तो वो किसी ओएस पर चल रही होती है, राइट? किसी, या तो लिनक्स के एनवायरनमेंट में चल रही होगी या विंडोज़ के एनवायरनमेंट में चल रही होगी। तो जो उस एप्लीकेशन का जो इन्वायरमेंट है जिस पर वो चल रही है, अगर मैं उस इन्वायरमेंट पे कोई कमांड एग्जीक्यूट कर पाऊँ, दैट इज कॉल्ड कमांड इंजेक्शन। कि अगर मैं उस एप्लीकेशन पर, लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल, ये मेरे लैपटॉप का टर्मिनल है, अब इस टर्मिनल पर
टर्मिनल, हाँ खुल गया। अब इस टर्मिनल पर अगर मैं जैसे कोई कमांड रन करता हूँ, लेट सपोज मैं सर्च करता हूँ, सिंपल रन करता हूँ ls, राइट। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे फोल्डर में, मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर में किस किस नाम की फाइल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आगे करता हूँ mkdir hello, तो आई एम through this command I'll be able to create the directory of directory by the name of hello on this page, right। अब मैं जब ls करूँगा तो आई एम एबल टू व्यू hello नाम की एक डायरेक्टरी आ गई, राइट। अब यही कमांड्स, ये तो मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ, मगर अगर ये कमांड्स मैं उस सर्वर पर कर पा रहा हूँ जिस सर्वर पर एप्लीकेशन होस्टेड है, तो अब ये कमांड इंजेक्शन हो गया। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये भी क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि मैं सर्वर पे फिर उस एप्लीकेशन का सोर्स कोड उठा सकता हूँ, उस एप्लीकेशन का सोर्स कोड डिलीट कर सकता हूँ। सर्वर पे तो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब ये सब चीज़ें अगर मैं कर पाऊँ सर्वर पर, तो ऑब्वियसली आई विल गेट गुड बाउंटी अगर मैं ये एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन पे दिखाता हूँ ये वल्नरेबिलिटी। तो सिमिलरली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आप लोगों को मैं लैब सॉल्व करके दिखाता हूँ इसकी भी। सिमिलरली वही ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, और इसमें हम लोग जाकर, अब यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, दिस लैब कंटेन्स एन ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट स्टॉक चेकर। अच्छा, तो बेसिकली वेयर इज द स्टॉक चेकर, व्हेन यू विल व्यू डिटेल्स of a product, so there is the option to check stock. I'll turn on the intercept and I'll check the stock of the application. All right, this is the request that is running. I'll send it to the repeater, and this is the request that is running to check the stock. Okay, so what we're going to do is, the application executes a shell command containing user supply product and store IDs, and returns the raw output from the command in its response. To solve the lab, execute the whoami command to determine the name of the current user. Okay. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये कह रहा है कि ये सर्वर पर कमांड्स रन हो रही हैं ऑन द टर्मिनल, और फिर उससे ये हमें जो उसका जो आउटपुट आ रहा है ये यहाँ पर हमें शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर लंदन लिखा हुआ है, सॉरी नॉट लंदन, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी आ रही है, I'll turn off the intercept, जो 62 यूनिट्स वाली वैल्यू लिखी आ रही है, ये वैल्यू जो है ये टर्मिनल से कमांड रन होके आ रही है। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो यहाँ पे ये एज इट इज पेस्ट कर रहा है। तो व्हाट वी कैन ट्राई इज, अच्छा तो आगे उसने कहा क्या है कि टू सॉल्व द लैब एग्जीक्यूट द whoami कमांड टू डिटरमिन द नेम ऑफ द करंट यूजर। हमें सिमिलरली सिर्फ हमें जो इस लैब को सॉल्व करने के लिए करना है वो हमें यहाँ पर दिखाना है इसको कि whoami एक कमांड होती है जो टर्मिनल पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों को आइडिया होगा भी। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल पे रन करूँ तो whoami का रिस्पॉन्स आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मेरे अपने लैपटॉप का नाम काली टोपी रखा हुआ है, तो
ये मेरे लैपटॉप का नाम आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर OMI कर दूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो इसने मुझे ये नाम बता दिया, पीटर CV4L76। दिस इज़ द नेम ऑफ द सर्वर दैट इज़ रनिंग दिस एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसमें एक सवाल बनता है कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन क्यों डाली यहाँ पे पेलोड में? Why didn't I write OMI as it is? ये इसका भी लॉजिक, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले गुल ने पूछा था ना कि हम लोग कैसे पैरामीटर में, हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पैरामीटर में कैसे क्वेरी लगेगी या कैसे सब हम लोग इंजेक्ट करेंगे पेलोड। तो इसका ताल्लुक भी इसी बात से है, वी डोंट नो कैसे हम लोग ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर सकते। दिस इज एब्सोल्यूट ट्रायल एंड एरर की। हम लोग जाएंगे उस वैल्यू के अंदर, हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे और हम लोग उसमें अटेम्प्ट करेंगे, पेलोड लिखेंगे। हो सकता होता अगर ये लैब इस तरह की होती तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हुए मैं, हो सकता है उससे ही नाम आ जाता, मगर उससे नाम नहीं आ रहा, उससे तो करेक्ट वैल्यू ही आ रही है। मगर जब पेलोड हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, बाय द वे ये जो सिंगल लाइन होती है ना, ये जो यहाँ पे मैंने डाली है, इसका मतलब होता है और। मेरी स्क्रीन ब्लर तो नहीं है? थोड़ी सी ब्लर हो रही है। ओके, आप सही हो। ओके, सो ये जो सिंगल मैंने ये लाइन बनाई हुई है, लाइन डाली हुई है, इसका मतलब होता है और। जैसे हम लोगों ने पहले SQL क्वेरी में और लिखा था ना, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग कमांड में और लिखना चाहें ना, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं अपने टर्मिनल पे वापस जाऊं और आप लोगों को कहूँ कि हु एम आई, यहाँ पे रन की मैंने हु एम आई और ये डाला मैंने और ls लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों कमांड्स मुझे रिजल्ट देनी चाहिए, और ये दोनों कमांड्स रिजल्ट क्यों नहीं दे रही हैं? वेट, ओके, तो बेसिकली हु एम आई और ls में कोई भी एक कमांड चल रही है और ये सेकंड कमांड को प्रेफरेंस दे रहा है, और हु एम आई एंड ls जब मैं कर रहा हूँ तो दोनों कमांड्स रन हो रही हैं। पहले मुझे नाम बता रहा है और फिर दूसरा मुझे पूरी सारी डायरेक्टरीज को लिस्ट करके दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं अपनी इंस्टेंस पे जाऊं और यहाँ पर मैं और की जगह एंड डाल दूं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ, चल गया, ये भी चल रहा है, ये पेलोड भी चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ज़रा थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर होता है कि यू हैव टू चेक इट ऑन योर ओन एंड कि कौन सा पेलोड चल जाए और कौन सा पेलोड नहीं चलता। दिस इज़ अ बिट ऑफ अ गेस गेम। आपको खुद ही तुक्का तुक्का लगाना होगा, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ऑब्वियसली जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी और इश्यूज फेस होते हैं। मसलन यू विल गेट firewall intercepting your request, firewall stopping you from executing commands, firewall uh, intercepting your request and not letting you execute payloads। अगर आप random payloads डालोगे तो firewall आपको पकड़ लेगी और फिर firewall आपकी IP ब्लॉक कर देगी। SOC टीम का काम ही यही होता है। तो फिर आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है। आप तुक्कमबाजी में भी आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे ये एक्सपीरियंस आप लोग सीखोगे कि सारे पेलोड्स आप हर जगह अटेम्प्ट नहीं करोगे। मिसाल के तौर पे जैसे इस वाले केस में हमारे पास अगर और ना चलता, ये वाला पेलोड अगर ना चलता, तो आई वोंट हैव ट्राइड एंड राइट। मैं ये वाला जो पेलोड था फिर मैं ये ना ट्राई करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो नहीं चल रहा तो ये भी नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स पेलोड ट्राई करता। वो कहाँ से मुझे मिलेंगे पेलोड्स कलेक्ट करने के लिए? आई डोंट हैव टू लाइक रियली वर्क हार्ड, ऑल आई हैव टू डू इज सर्च इट ऑन गूगल। मैं गूगल पे सर्च करूँगा, ये पहला लिंक आ गया गिटअप पर, और जब इस लिंक में मैं जाऊँगा तो मेरे पास सारे पेलोड्स आ जाएंगे जो भी इस केस में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो यू कैन सी हाउ मेनी पेलोड्स देयर आर।
like hundreds of payloads that we can use. अब जैसे अभी हम लोगों ने जो यूज किया वो ये वाला पेलोड था. सिमिलरली अगर हम लोग फिर मैंने इसके बाद जो आपको यूज करके दिखाया वो ये वाला पेलोड था. अब इधर किसी किस्म की भी इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं हो रही है, तो वी कैन एग्जीक्यूट एनी पेलोड, कोई सा भी लग जाएगा इधर अगर मैं लगाऊंगा. तो ये थोड़ा सा गेम आप लोगों को समझना होगा कि अगर एक किस्म का पेलोड नहीं चलता तो फिर हम लोग उस जैसा दूसरा पेलोड नहीं डालेंगे, फिर उससे डिफरेंट टाइप का पेलोड डालेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन, ये हो गया कमांड इंजेक्शन. सिमिलरली नो एसक्यूएल इंजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. ये अभी थोड़ा सा एडवांस अटैक होता है, ये वास्प टॉप 10 में भी इतना काउंट होता नहीं है अभी. तो इफ़ यू आर एबल टू डू इट, कर सकते हो बिल्कुल. इसमें आप लोग, मैं बिल्कुल इनकरेज करूंगा आप लोगों को करने के लिए, अपने एंड से पढ़ने के लिए. लेकिन अगर नहीं भी कर पाते तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है. ये इतना कोई बड़ा अटैक नहीं है. मेजर अटैक्स में एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, फाइल अपलोड भी कर सकते हैं. फाइल अपलोड बाद में करेंगे. XXC injection, this is a very good attack by the way, और but this is a bit complicated. ये इतने आराम से समझ में नहीं आता. XML queries होती हैं, उनके अंदर हम लोग पेलोड डाल रहे होते हैं. तो NoSQL injection and XXE injection, I would suggest कि आप लोग जब SQL इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन कर लो तो ज़रूर give these a try. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. एक और इंजेक्शन कर लेते हैं. लेट्स डू दिस सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन. अच्छा, बेसिकली व्हाट इज सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन? सो इन शॉर्ट, एप्लीकेशंस में आप लोगों को जो डेवलपमेंट कर चुके हैं खास तौर पे उनको आइडिया होगा, टेम्पलेट्स भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जिंजा टेम्पलेट है, फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे होते हैं, वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स यूज़ हो रही होती हैं, राइट? बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जो रेडीमेड हम लोगों को मिल जाती हैं, उनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन में. नाउ व्हाट सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन इज, कोई कुछ कहना चाह रहा है? No, okay. So what server side template injection is, जब हम लोग उस टेम्पलेट के अंदर कोई ऐसी क्वेरी रन कर दें, क्वेरी भी नहीं है बल्कि कोई ऐसा पेलोड इंजेक्ट कर दें जिससे हम सर्वर तक पहुंच जाए. जैसे अभी हम लोगों ने OS कमांड इंजेक्शन किया ना, तो any such payload that we are able to inject in the template that can get us to the server, that is called server side template injection. Now let me show you an example. यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. Let's leave this for tomorrow. This is a bit more difficult than the previously the vulnerabilities that we have covered previously. एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं. पहले क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं. तो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग
आई होप सबको पता भी होगा, सबको आइडिया भी होगा होता क्या है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज the most popular, one of the most popular vulnerabilities that the attackers exploit in real world environments. और ये vulnerability ऐसी vulnerability है कि इसको यूज़ करके आप एप्लीकेशन को डिफेस कर सकते हो, यानी एप्लीकेशन की शक्ल बदल सकते हो। एप्लीकेशन में से कुकीज़, सेशन कुकीज़ निकाल सकते हो। दिस इज़ ये वैसे तो ये मीडियम सिविरिटी वल्नरेबिलिटी होती है, लेकिन इसको हम लोग क्रिटिकल तक भी एस्केलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग सिचुएशन पर। तो अच्छा, अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है ये 3 टाइप्स की होती है। एक टाइप रिफ्लेक्टेड होती है, एक टाइप स्टोर्ड एक्सेसेस होती है, और एक टाइप डॉम बेस्ड एक्सेसेस होता है। तो लेट मी शो यू व्हाट दिस इज। अब ये देखो, ये मैंने एक सिंपल सा गूगल खोला और इसमें मैंने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया। नाउ व्हाट दिस इंस्पेक्ट एलिमेंट इज, ये डॉक टाइप एचटीएमएल जो लिखा है ना, दीज आर ऑल डॉम्स। इसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट, ये सब कोड लिखा है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो टैग्स लगे हुए हैं, ये सब डिफ टैग्स, ये these are all the tags that the developer has in the whoever the front end developer is, जिसने ये पेज डिजाइन किया है, उसने ये सारे टैग्स इंजेक्ट कर, ये सारे टैग्स अपने कोड में लगा के दिए, जिनको यूज करके हम लोग ये एप्लीकेशन देख पा रहे हैं। और एप्लीकेशन में जो ये इसका इंटरफेस है, द वे द एप्लीकेशन लुक्स, वी आर एबल टू व्यू दिस। और इसको हम लोग इन टैग्स के थ्रू, ये जो बैकएंड पे टैग्स लगे हुए हैं, इनको इनके थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं। नाउ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या करता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली इन टैग्स में अगर आपने अपना टैग इंजेक्ट कर दिया तो आप इस एप्लीकेशन को चेंज कर पाओगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये गया मैं, और ये वाला टैग जो है डिफ टैग, ये मैंने डिलीट कर दिया, लेट्स सपोज। अच्छा, ये पीछे से डिलीट हुआ है कुछ। तो देखो, ये गूगल ही चला गया सामने से, जो गूगल का सर्च बार था यही पूरा चला गया। ये जैसे ये मैंने डिलीट किया, तो ये पूरा सर्च बार ही चला गया। तो अभी मगर ये सिर्फ मेरे पास हुआ है, ये आप लोगों के पास नहीं होगा। अगर आप google.com खोलेंगे तो ये आप लोगों के पास नहीं होगा। अगर ये मैं आप लोगों के पास भी कर दूं तो इसका मतलब है कि ये मैंने टैग्स जो है ये इन पे मैंने मैनिपुलेशन कर दी। दिस इज कॉल्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगर मैं अपना कोई टैग इधर डाल पा रहा हूँ जिससे मैं इनकी पेज को मॉडिफाई कर सकूं, इनके पेज की शक्ल बदल दूं, उससे मैं उस अटैक को बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अच्छा, अब सिमिलरली इस केस में जैसे अगर यहाँ पे तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों ने सब सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। नहीं, ये नहीं चलाने देगा। हम ये टेस्ट एनवायरनमेंट में ही चेक करना होगा।
अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, डॉम बेस्ड एक्सेसेस और स्टोर्ड एक्सेसेस। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। रिफ्लेक्टेड में क्या होता है कि जो मैं पेलोड बनाऊंगा ना, आई नीड टू सेंड दैट पेलोड टू द विक्टिम। मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी को कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर मैंने किसी विक्टिम को कॉम्प्रोमाइज करना है, तो आई नीड टू सेंड दैट पेलोड टू द विक्टिम। वो पेलोड रन करेगा, तभी वो उस पेलोड को, वो उस एक्सेसेस के जो पेलोड हमने लगा के भेजा होगा, वो उसको इफेक्ट करेगा। स्टोर्ड एक्सेसेस में हमें पेलोड भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमने एप्लीकेशन में लगा दिया अगर पेलोड एक दफ़ा, तो वहीं पे स्टोर हो जाएगा, एंड दैट्स द नेम ऑब्वियसली। तो जब वो पेलोड हमने वहाँ पे लगा देंगे और एप्लीकेशन में वो स्टोर हो जाएगा, तो जब भी कोई विक्टिम आके उस पेलोड पे आके क्लिक करेगा, वो पेलोड उसके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड द थर्ड केस, डॉम बेस्ड। डॉम बेस्ड नॉर्मली रिफ्लेक्टेड के केस में आ जाता है। रिफ्लेक्टेड जैसे ही होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अटैक है डॉम बेस्ड एक्सेसेस, तो वो हम लोग एंड के लिए छोड़ेंगे। ये कल देख लेंगे अगर टाइम मिलता है। बाकी अटैक्स कवर करने के बाद तो देख लेंगे, बाकी रिफ्लेक्टेड और क्रॉस स्टोर्ड तो अभी देख लेंगे। This lab contains a simple reflected cross-site scripting vulnerability in the search functionality. To solve the lab, perform a cross-site scripting attack that calls the alert function. अच्छा, तो हमारे पास ना, जब हम लोग एप्लीकेशन में कुछ भी सर्च करते हैं, देखो तो ये इस तरह करके दिखा रहा है, ये इसने रिस्पॉन्स किया रिफ्लेक्ट, और उस रिस्पॉन्स का रिजल्ट हमारे पास इस तरह करके आ रहा है। अब मैं गया, मैंने सिंपल किया HTML टैग इंजेक्ट। अब मैं जो जी सर्च कर रहा हूँ, अब ये HTML टैग के साथ कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको सर्च करूंगा, नोटिस ये जी जो है ये बोल्ड हो गया। इसका मतलब है जो मेरा पेलोड है वो इंजेक्ट हो रहा है। अब मैं अगर जैसे लेट सपोज कोई और टैग ट्राई करूं, H1, अच्छा H1 नहीं लगा, कोई और ट्राई करते हैं। इटैलिक, इटैलिक हो गया। इस तरीके से एक टैग होता है स्क्रिप्ट का टैग। What does the script का tag do? Basically, when you want to execute source code on the application, attack, when you want to attack on a server of some application, और उसको उसमें आपको अपना सोर्स कोड डालना हो, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू आप सोर्स कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो इसने सवाल में कहा भी है ना, टू सॉल्व द लैब परफॉर्म अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक दैट कॉल्स द अलर्ट फंक्शन। टू कॉल एनी फंक्शन, अलर्ट तो एक टाइप ऑफ फंक्शन है, टू कॉल एनी फंक्शन यू नीड टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट 43। इसका मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन में हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो टैग है वो इंजेक्ट हो गया और वो एग्जीक्यूट हो गया, एंड देयरफॉर द लैब भी सॉल्व हो गई। अब अगर मुझे ये अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये मुझे अटैक किसी विक्टिम पे एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे ये पूरा यूआरएल उठाकर उसको भेजना होगा। फिर जब वो ये यूआरएल पे क्लिक करेगा, तो उसके पास भी पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर जैसे मिसाल के तौर पे, आई डोंट नो इफ आई वुड बी अलाउड टू एग्जीक्यूट दिस और नॉट, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का मतलब है सेशन वैल्यू। तो अगर ये मेरे पास आ जाती है, तो मैं इससे फिर किसी का भी सेशन ले सकता हूँ। नहीं, सेशन कुकी नहीं है दिखा रहा। बेसिकली दीज आर एडिट कंट्रोल्स जो कि हम लोग लगाते हैं एप्लीकेशन में। तो सेशन वैल्यू नहीं आ रही, बट नॉनदलेस अटैक हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड।
अब जैसे ये रिफ्लेक्टेड का केस था, लेट्स गो एंड डू सम ये कॉल लैप कर लेते हैं। अब ये स्टोर्ड एक्सेस का केस है। समझ में क्या कह रहा है? दिस लैब कंटेन्स अ स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग vulnerability in the comment functionality. To solve this lab, submit a comment that calls alert function when the blog post is viewed. So basically what is happening is when we will view some post, there is a comment section. ये कह रहा है कि यहाँ पर okay, so basically this comment section is vulnerable to cross-site scripting. तो जैसे मैं अगर कमेंट करता हूँ hello najam@n.com https.com, तो ये मेरा कमेंट आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, पेलोड ट्राई करता हूँ, स्क्रिप्ट अलर्ट 1, अच्छा अलर्ट के अंदर आप बाय द वे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना नाम लिख दें, चाहें तो document.domain ही कॉल कर लें, जो आपको ईजी रहे। नेम में गए, वही डाल दिया मैंने, ईमेल में डाल दी, अच्छा सी व्हाट हैपेंड। बेसिकली यहाँ पे अब मेरा जो पेलोड है वो स्टोर हो गया। अब जब भी मैं इस पेज पे आऊँगा, जैसे व्यू पोस्ट किया, यहाँ पे पेलोड एग्जीक्यूट हो गया। अब जो भी इस पेज पे आएगा उसके पास ये पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टोर्ड एक्सेसेस। गेटिंग माय पॉइंट? अभी टाइम है थोड़ा सा, तो लेट्स डू सम मोर लैब्स। So this is XSS. Now we'll proceed on to some other attack. Okay, so let's do part traverser attack. ये बल्कि एक काम करते हैं, CSRF कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। Part traverser ही कर लेते हैं। This is also a simple attack. Basically what part traversal is, होता क्या है कि जब कभी, जैसे अभी हम लोगों ने OS कमांड इंजेक्शन किया था ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कमांड, अगर हमें किसी अटैक, जब मैं अगर किसी सर्वर पर अपनी कमांड एग्जीक्यूट करनी हो तो वी कैन
जब अगर किसी भी ऐसे पैरामीटर में हम लोग पेलोड डाल दें जिस पैरामीटर के अंदर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो और वो वहाँ पे सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रहा हो दैट पैरामीटर, वी कैन इंजेक्ट एनी पेलोड इन इट, और फिर उसको हम लोग यूज़ करके, उस पेलोड को हम लोग यूज़ करके वी कैन execute an attacker can execute their own commands as well. Similarly पार्ट रिवर्सल में क्या होता है, अगर हम लोग कोई फाइल व्यू कर रहे हैं ना, जैसे उस केस में गिफ्ट्स की कैटेगरी में से हम लोग फाइल्स व्यू कर रहे थे, तो इफ वी आर अलाउड टू चेंज डायरेक्टरीज ऑफ द फाइल, लेट्स सपोज ये मैंने अपना टर्मिनल खोला, लेट मी क्लियर द वैल्यूज। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे एक फाइल है automation.sh के नाम से एक फाइल है, राइट। तो लेट सपोज ये फाइल खुली हुई है मेरे पास, मैं जब भी मैंने अपने उसमें दे दी अपनी कम फंक्शनैलिटी दे दी वेब एप्लीकेशन में कि व्हेन एवर समवन वुड क्लिक ऑन दिस बटन automation.sh वुड ओपन, राइट। तो और मैंने उसके पीछे जो कमांड रन हो रही है वो ये कमांड रन हो रही है cat स्पेस automation.sh। लेकिन अगर वो जगह वो वनरेबल होगी पार्ट ट्रेवर्सल वनरेबिलिटी के, तो आई बी अलाउड टू ट्रेवर्स द डायरेक्टरीज एज वेल। तो हो क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि जैसे मैंने अभी कैट ऑटोमेशन डॉट एस एच किया है ना, तो मैं यहाँ से इसकी डायरेक्टरी चेंज भी कर पाऊँगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे अभी तो हम लोगों ने ऑटोमेशन डॉट एस एच व्यू किया था ना, अब मैंने ये डबल क्लिक कर, जब मैंने अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब है कि मैं पीछे चला गया और मेरे पास दूसरी डायरेक्टरी दूसरी कमांड भी व्यू हो रही है। सिमिलरली मैंने दोबारा किया तो मेरे पास और एक डायरेक्टरी पीछे चला गया, मैंने दोबारा किया मैं और पीछे चला गया। तो इस तरह कर करके हम लोग डायरेक्टरी के पूरे उसमें हम लोग डायरेक्टरी की बकायदा जो सेंसिटिव फाइल्स हैं उनमें भी चल जा सकते हैं। अब जैसे ये मैंने जो फाइल खोली है ये ETC पासवर्ड की फाइल है, इसके अंदर सारा सेंसिटिव डाटा मौजूद होता है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम लोग हमारे पास वो एप्लीकेशन पार्ट ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी के वल्नरेबल है, तो उसमें पे वी कैन ट्रेवर्स थ्रू द एप्लीकेशन एंड द फाइल्स एंड वी कैन ओपन आर वी कैन ओपन एनी फाइल। तो उसके अंदर ऑब्वियसली सेंसिटिव फाइल्स भी मौजूद होंगी, तो ये ETC पासवर्ड की फाइल भी हम लोग व्यू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लैब अगर खोल के दिखाऊं उसमें, तो लैब में क्या कह रहे हैं, दिस लैब कंटेन्स अ पार्ट रिवर्सल वल्नरेबिलिटी इन द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, लेट्स चेक। लेट मी क्लोज प्रीवियस टैब्स। Let's access this lab. So what they are saying is in the display of product images, right? So when we will go to view details, product images. Okay, so product images कहाँ से view हो रही हैं? Product ID is equal to 1. Let's check. View details में गए, request intercept की, and repeater में भेजी request. तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Missing parameter product ID. Invalid product ID.
नहीं, यहाँ पे नहीं है, पैरामीटर कहीं और वल्नरेबल है। कोई और पैरामीटर, गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग। There is the file name parameter. Product ID. Oh, okay, here is the file name parameter. So basically, when we view this image, then we can see the parameter that is vulnerable to path traversal. Now what we are going to do is intercept. We are going to turn on the intercept request. After intercepting the request, we will send it to the repeater. So this parameter is basically ये फाइल यहाँ पर खुल रही है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अगर हमें कोई और फाइल खुलनी है तो हम सिंपली उस फाइल का पाथ दे देंगे। तो अगर मैं इसको etc पासवर्ड फाइल का पाथ दे दूंगा तो इट शुड ओपन दैट फाइल। सी, so now I am able to check root, user bin, login, everything। सारे पाथ सारे मेरे पास सारे हैशेस आ जाते हैं। मैं इस तरह शेडो etc शेडो की फाइल भी इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ होपफुली। लेट्स सी, no such file। Okay, so they have stored it somewhere else, but nonetheless लैब इससे सॉल्व हो जाएगी। और इम्पैक्ट डेमोस्ट्रेट करने के लिए इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एज वेल, आपको सिर्फ इतना काफ़ी है कि आपने ये दिखा दिया कि etc पासवर्ड आप उसमें व्यू कर पा रहे हो सर्वर की फाइल। दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आप करोगे तो हो सकता है कि वो आपकी बाउंटी कैंसिल ही कर दें, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन में काउंट होता है फिर ये। तो this is the file that we are able to view, and therefore we have successfully conducted path traversal attack, right? So we have covered almost 4 attacks today, और थोड़ा सा ज़्यादा ही है। जब आप लोग अपने एंड पे अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि दैट इट इज़ नॉट सो ईजी। सर्टिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। या वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एंड में दिखाऊंगा। यहाँ पर जब आप medium.com पे जाओ, this website is the gold mine, is a gold mine for hackers, क्योंकि इधर ना आपको हर राइटअप मिल जाएगा, आपको हर अटैक की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे आज हम लोगों ने SQL इंजेक्शन कवर किया, तो जस्ट सर्च SQL इंजेक्शन, तो यहाँ पे आपको बाकायदा रिपोर्ट्स मिलेंगी। Why isn't it loading? I don't know why this isn't opening. So this is a guy, some guy named Naveen. He exploited a time-based blind SQL injection in a popular help desk software. उसको बकायदा CVE भी असाइन हुई है 2025, यानी इसी साल इसने निकाली है। तो ये आप देख सकते हो कि इसने बकायदा रिक्वेस्ट भी लगाई हुई है, और उसमें इसने बताया हुआ है कि कौन सा पेलोड लगाया है। दिस इज़ द पेलोड दैट ही हैज़ एग्जीक्यूटेड, और उसको ये पेलोड एग्जीक्यूट करने पर क्या डाटा उसको मिला है, किस तरीके से उसने क्या मिला है, पूरी एक एक डिटेल उसने बताई है। SQL मैप इज़ द टूल दैट वी यूज़। अगर आपको ऑटोमेटेड अटैक करना है ना SQL इंजेक्शन, अगर आपने किसी पैरामीटर में निकाल लिया है, अब कंफर्म है कि SQL इंजेक्शन इस पैरामीटर में मौजूद है,
So you can use SQL map. This tool comes built in with Kali Linux. अगर आपके पास काली नहीं है कोई मसला नहीं है, आप SQL मैप को अपने पास लैपटॉप में भी विंडोज़ में भी सेटअप कर सकते हो, कोई इतना मसले की बात नहीं होती। मैंने अपने पास आई गेस इधर भी किया हुआ है। दिस इज़ मैक ओएस। तो आप अपने अपने एंड पे भी अपनी लोकल इंस्टेंस पे भी इसको सेव कर सकते हो। सिमिलरली आपको मैं अगर दिखाऊं तो मीडियम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, लेट्स सी इस रिपोर्ट में क्या इसने लिखा हुआ है। ओह अच्छा, ये तो वही वाली खुल गई। A story of $750 broken access control. Let's see क्या निकाला है इसने। Let's get started. Community one and web. I'm able to use it. That's really cool. अच्छा, इसने डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो इमेजेस नहीं लगाई हुई लेकिन डिटेल्स लिखी हुई हैं। In fact, any user of the application can have access to other user email of the box. अच्छा, Scenario 1, create 2 accounts, user A and user B. 2 accounts इसने बनाए। Email भेजी इसने application which contains some sensitive company information to user B. Once user B A sends an email to user B, he will be notified via the actual email, and it contains the message link. The message link has its own token which will be leaked to third-party websites. Once the party user of the third-party website gets access to the message token, he can access the email sent by user A and user B. Here the attacker needs one normal account. बेसिकली आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा डिटेल में, इसने क्या लिखा है। ये राइटअप इसने इतना मज़े का होने से लिखा नहीं है। अगर कोई मज़े का राइटअप दिख जाए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। How did I do it? Logged in normal user. Browse with मज़े के राइटअप्स नहीं है यार। अच्छे राइटअप किसके? लेट्स सर्च iDoor. All about insecure, how to find the $1 billion. Okay, this looks interesting. External team published by engineering, the simplest vulnerability with the biggest impact. Oh, this looks cool. Imagine changing a single number in a URL from user ID is equals to 123 to 124 and suddenly accessing another person's medical records. Okay. अब ये देखो, ये कोई बैंकिंग की उन्होंने दी हुई है एग्जांपल, जिसमें अकाउंट आईडी कि उन्होंने जब चेंज किया, सिंपल नंबर चेंज किया, तो वो दूसरी आईडी एक्सेस कर पा रहे थे। इंडस्ट्रीज एट रिस्क। सो यू कैन इमेजिन कितनी सिंपल सी ये वल्नरेबिलिटी है और कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है। लाइक इन्होंने बकायदा हेडिंग में लिखा है द $1 बिलियन ऑथराइजेशन बग। तो जस्ट इमेजिन, उसमें इनको $1 बिलियन ऑब्वियसली मिले नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि इम्पैक्ट इसका इतना ज़्यादा था कि वो जो कंपनी है, अगर उस मिसाल के तौर पे उस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन है, तो $1 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स उनके कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। सो जस्ट इमेजिन किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू मीडियम एटलीस्ट वंस अ डे फॉर अगर 10-15 मिनट्स भी तुम लोग करोगे ना, इट इज़ मोर देन इनफ। रीड सम आर्टिकल्स ऑन इट और सब्सक्राइब टू देयर न्यूज़लेटर, देयर वीकली न्यूज़लेटर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो तुम्हें खुद आर्टिकल्स भेजेंगे, तो ये ज़रूर पढ़ो। बड़े बड़े मतलब बड़े अच्छे राइटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छे राइटअप्स मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी मिलते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बहुत सिंपल भी मिलते हैं एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप लोग जब आप लोग बग बाउंटी करोगे, ख़ास तौर पे जो करता है उसको आइडिया भी होगा कि किस कदर ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारी फील्ड में। और ये इस तरह के राइटर्स पढ़ने से ना आपको अवेयरनेस आ जाती है, क्योंकि कभी कभार होता क्या है, वनरेबिलिटी इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फाइंड इट, यू डोंट नो व्हाट टू डू टू एक्सप्लॉइट इट, आप नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, सामने होगी लेकिन आपको मिलेगी नहीं। तो ये वाली चीज़ एक होती है जो आप लोगों को करनी होगी और होपफुली इंशाल्लाह
तो काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अब ज़रा थोड़े से आप लोगों से क्वेश्चंस ले लेते हैं। एनीवन एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया? ऑब्वियसली दिस इज़ डिफ़िकल्ट, इट रिक्वायर्स एफर्ट। आप लोगों को अपने एंड पे टाइम देना होगा, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग टाइम दोगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह सिर्फ मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप 1 से 2 घंटे भी डेली दोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। गुल, यू हैव रेज्ड योर हैंड। थैंक यू सर फॉर टुडे सेशन। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जो नेटवर्क वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं, सॉरी वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर लाइक नेसेस हो गया, इसके बाद एक्योटेक्स हो गया, तो इनकी मदद से जो हम वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं और वो साथ ही वो पैरामीटर्स भी दे रहे होते हैं, इस साथ पेजेस का भी बता रहे होते हैं कि इनमें ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या ये इजीएस्ट वे है? मतलब मैनुअली एक वेबसाइट जो कि बहुत लंबी होती है और उसमें बहुत से पेजेस होते हैं, बहुत सी मतलब वो कंटेंट होता है, तो उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करने से, तो ये क्या इजीएस्ट वे है सर? बेसिकली मैंने आज तक एक्सप्लोइटेशन वगैरह नहीं की है और ना ही इससे गया हूँ, मैं बेसिकली डिफेंसिव साइड का हूँ, सो दैट्स। अच्छा देखो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के पेन टेस्टिंग एंगेजमेंट्स में ना 2 अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच ये होती है जो, जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो अब उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरे पास 1 वीक है टू असेस देयर एसेट्स और उनको रिपोर्ट देनी है 1 हफ्ते बाद। तो ऑब्वियसली आई नीड टू परफॉर्म वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी। मैं पहले वीए करूँगा जिसमें मैं एक ऑटोमेटेड टूल चलाऊँगा, वेब स्वीट प्रोफेशनल मेरे पास होना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी गुड टूल, वेरी फिजिबल, बहुत सस्ता भी है, लेकिन अगर किसी पर चलो अगर पैसे नहीं भी हैं तो यू कैन डाउनलोड क्रैक वर्जन ऑफ इट एज वेल, और इंटरनेट पे अवेलेबल है। दैट इज़ नॉट इनकरेज्ड ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको uh, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मगर एंड ऑफ द डे आपकी जो वैल्यू है ना, जो आपकी वर्थ है एज पेनिट्रेशन टेस्टर, वो मैनुअल वल्नरेबिलिटी से ही निकलती है। और आप सही कह रहे हो, एप्लीकेशन बहुत बड़ी होती है, एप्लीकेशन सब कुछ होता है, तो आपको ये एकदम से नहीं मिलती। तभी अटैकर्स जो होते हैं ना, आप कभी हैकर वन पे जाओ तो देखो आप, एक एक एप्लीकेशन पर 1 1 साल तक लगे रहेंगे। तो वो एप्लीकेशन फिर उनको रिवॉर्ड भी उस तरह करती है। जब आप उस एप्लीकेशन में कोई वल्नरेबिलिटी निकालोगे ना, तो आपको कई कई हज़ार डॉलर बाउंटी देंगे। तो दैट इज़ वर्थ इट एक्चुअली। अगर आप फिर कोई एक वल्नरेबिलिटी भी निकालते हो और मिसाल के तौर पे 4 महीने में 1 दफ़ा निकालते हो, और उस पर आपको अगर 2 3 हज़ार डॉलर की बाउंटी मिल जाती है, तो दैट इज़ वर्थ इट। और आपने मतलब कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका, आपने पार्ट टाइम काम किया, आपके पास वल्नरेबिलिटी निकला, या आपने एक्सप्लॉइट कर ली, एक्सप्लॉइट क्या कर लिया आपने, उनको रिपोर्ट कर दी एंड यू अर्नड गुड अमाउंट आउट ऑफ इट। तो फिर इस तरीके का अप्रोच भी होती है। तो ये 2 किस्म की अप्रोच होती है, एक टाइम बेस्ड अप्रोच होती है और दूसरी मनी बेस्ड अप्रोच होती है, अमाउंट की, जिसमें वल्नरेबिलिटी बेस्ड अप्रोच जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। रोहित, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही? वालेकुम। जी जी आ रही है। अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि जो रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग होती है उसमें और जो हम करंटली जो बर्ब सूट पे कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस होगा, और आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी रियल वर्ल्ड वेब पेन टेस्टिंग की, अगर हम उसको देखें तो? हम्म। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग में और जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब आप ये लैब्स, जो मैंने अभी आपको लैब्स, बिल्कुल ऑब्वियसली 2 आवर्स का सेशन होता है, दिस इज़ वेरी लिमिटेड। अब इसमें मैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही आपको दिखा सकता हूँ। अब आप यही लैब्स अगर आप एक्सपर्ट डिफ़िकल्टी लेवल तक वाली कर लो सारी, तो उसमें जो सिनेरियोज उन्होंने दिखाए हुए होते हैं, जो सिनेरियोज आप लोग यूज़ करके एक्सप्लॉइटेशन कर रहे होगे, ये सिनेरियोज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड किसी एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग कर रहे होगे ना, और एसक्यूएल इंजेक्शन उसमें चेक कर रहे होगे, तो ऐसे ही होता है, इससे ज़्यादा कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं होती। बस सारी बात यह है कि आपको पेलोड लगाना आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इसमें आपके पास लिमिटेशन आती है तो आपको उसको बाईपास कैसे करना है। सारा गेम ये होता है, दैट इज़ इट।
अब ये आपके पास कैसे आएगा? ये आपके पास दो तरीकों से आएगा। एक आपने लैब्स प्रैक्टिस करके आएगा, दूसरा तरीका है आर्टिकल्स पढ़ के, जो मैंने आपको medium.com के आर्टिकल्स बताए ना, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको इससे आपको आइडिया होगा। देयर इज़ नो थर्ड वे। और यही दो तरीके, अगर आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी तेज़ी से आप सक्सीड करोगे इस फील्ड में। ओडियन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर सुहेल एक आप? और ऐड हाँ हाँ करूं? बोलिए। हाँ हाँ सर बोलिए अच्छा, बोलिए। अच्छा सर, फिर ये ठीक है, हम लोग बर्ब सूट में ये हमने सारा प्रैक्टिस किया है, ये चले हम आगे पीछे से हमने एक और जगह से भी प्रैक्टिस कर ली। सो हम लोग वो अपने आप को रियल वर्ल्ड में जब कोई जॉब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम लोग किस तरह एक्सप्लेन करें कि यार हमें आता है, एंड यू शुड गिव अस अ ट्राई और समथिंग, वो हम किस तरह करेंगे फिर? बिल्कुल, अच्छा, मतलब वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिनेरियो क्या होता है। मिसाल के तौर पे जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू देने, तो दो चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। एक होती है आपकी प्रोफाइल, आपने सारे, मिसाल के तौर पे आपने पोर्ट वगैरह की सारी लैब सॉल्व कर ली, आपने सारे अटैक्स कर लिए, सारी डिफ़िकल्टीज पे कर लिए। अब आपको ये जो आपकी एक्सपर्टीज़ है ये अब आपको शो करनी होगी। यू नीड टू शो दिस ऑन योर सीवी, राइट? तो ये शो करने के लिए जो रास्ता होता है ना, वो आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो दुनिया में इस वक्त आपके पास वेबसाइट्स हैं, जो आप अभी अपने पास गूगल पे जाके चेक करो, सर्च करो, बहुत सारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब्स जो चल रही हैं उन पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये वही वल्नरेबिलिटीज़ जो आपने अभी अपनी लैब के एनवायरनमेंट में एक्सप्लॉइट किया है, वो आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आप एक्सप्लॉइट करो जाके। जब आपका स्किल इस लेवल का है कि आप सारी लैब सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप वही वल्नरेबिलिटीज़ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में भी निकाल पा रहे होगे। इस तरीके से आप शो करते हो कि देखो मैंने रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ये वल्नरेबिलिटीज़ निकाली हैं। सिमिलरली दूसरा रास्ता ये होता है कि आप सर्टिफिकेशंस करते हो। जब आपने ये वेब बेस्ड आपके पास अप्रोच परफेक्ट हो गई आपकी, अब आप ये कर पा रहे हो, तो आप फिर सर्टिफिकेशंस भी करते हो उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये लैब्स करके छोड़ देते हो। आप ये जो सर्टिफिकेशंस होती हैं जिनके अंदर ये लैब्स आती हैं, आप फिर वो एग्ज़ाम्स दो। CEH हो गया, OSCP हो गया, EJPT हो गया, उनमें यही सब कुछ होता है। जब आप वो सर्टिफिकेशंस करोगे ना, उससे आपकी ऑटोमेटिकली CV अपडेट हो जाती, अपग्रेड हो जाती है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। बस यही दो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। जी मुबशर। Sir, what if a company has made their website that have already made their website super secure, meaning they have input verification and everything, and then they give us a limited time like 7 days to find vulnerability. So to find any vulnerability would take super long, as we have to test every little thing to find any gap. So what will happen if we don't meet the deadline? अच्छा देखो यार, जब आपको कोई पेन टेस्टिंग एंगेजमेंट होती है ना, तो आपको इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती। आ, सबसे पहले तो आपकी क्रेडिबिलिटी देख के वो आपको काम देते हैं। ठीक है, तो आपकी वो क्रेडिबिलिटी देखेंगे क्या भाई आप हैं कौन, आपने किया हुआ क्या है। तो ये सब कुछ चीज़ें, ये पूरी ये आपकी ये मार्केट ट्रैकी करने के बाद, अगर वो आपको 7 डेज दे रहे हैं ना कि आप उनकी एप्लीकेशन पर टेस्टिंग करो, तो दे विल बी पेइंग यू फॉर दो 7 डेज। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त का काम नहीं करवा रहे होंगे आपसे। और अगर वो मुफ्त का काम करवा रहे होंगे ना, तो वो फिर आपको वल्नरेबिलिटी बेस्ड पैसे देंगे, बेसिस पे पैसे देंगे कि अगर आपने हमारे एप्लीकेशन पे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी निकाली तो हम आपको इतने पैसे देंगे, मीडियम निकाली तो इतने पैसे देंगे, हाई निकाली तो इतने पैसे देंगे। फिर नॉर्मली उस तरह की जो एंगेजमेंट होती है ना, दैट इज़ नॉट टाइम बाउंड। उसके ऊपर आपके पास टाइम होता है, आप आराम से बैठ के करें, आप हैकर वन पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, बकग्राउंड पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं। आपके पास टाइम है, आप आराम से जाके उसमें कोई भी एक एप्लीकेशन पकड़ लें। मैं तो इस हद तक भी कहता हूँ कि आप जाओ facebook.com पकड़ लो, google.com पकड़ लो, इनके इतने डोमेन है। आप इनके अंदर जाओगे ना, जीमेल भी इनका है और यूट्यूब भी इनका है, इतनी वेबसाइट्स हैं, आपकी सोच है। तो उससे और एपीआईज फिर उससे ज़्यादा डबल तो एपीआईज हैं, क्योंकि जब जितनी वेबसाइट्स हैं उनको चलाने के लिए हज़ारों एपीआईज हैं। तो आप उसमें से किसी एक में भी वल्नरेबिलिटी निकाल लोगे ना, तो वो आपका काउंट यही होगा कि आपने गूगल में वल्नरेबिलिटी निकाली है। जैसे अभी लोग नासा में निकाल रहे थे ना, तो किसी भी एक डोमेन पे आपने कुछ भी एक्सप्लॉइट कर दिया, वो आपके पास क्रेडिबिलिटी के लिए काफ़ी होता है। तो आप इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर उन्होंने 7 डेज दिए हैं तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, आपको पैसे भी मिल रहे होंगे। और अगर पैसे नहीं मिल रहे तो आपको फिर टाइम बाउंड नहीं करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई सवाल?
ठीक है. So let's end this session over here. I hope there was some value addition. और ऑब्वियसली मैं ये ग्रुप पे मैसेज भी कर दूंगा. ये जो भी हम लोगों ने आज अटैक्स किए हैं उनके नाम भी बता दूंगा. ये आप लोगों ने अपने एंड पे करना है. अगर आप लोग नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर कल जो हमारी क्लास होगी उसमें आप ब्लैंक बैठे होगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर. ठीक है. तो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. सी यू टुमारो इंशाल्लाह.